Some time back, I read a certain quote which I believe that you should hear this morning. कुछ समय पहले मैंने कुछ पढ़ा जो मैं समझता हूँ कि इस सवेरे के वक्त हम सभी सुन ले। It talks about 7 social sins. समाज में पाए जाने वाले 7 पापों के बारे में। What are those 7 social ये sins? 7 पाप क्या है? Number 1, wealth without work. धन बिना कामकाज के। Secondly, pleasure without conscience. सुख विलास बिना विवेक के। Thirdly, knowledge without character. ज्ञान बिना चरित्र के। Fourthly, commerce without morality. कारोबार बिना खराई के। Fifthly, science without humanity. ज्ञान बिना मानवता के। Sixthly, worship without sacrifice. आराधना बिना बलिदान के। And seventh and finally, politics without principles. राजनीति बिना सिद्धांतों के। Somebody may ask, Pastor, why are you bringing this quote to us? आप शायद ये पूछ सकते हैं कि पासवान ये सारी बातें हमको क्यों सुना रहे हैं आप? It's because what we are going to learn this morning contextually is very close to what we just read. क्योंकि जो हम इस सवेरे के वक्त सीखने वाले हैं ये बातें उससे संबंधित है। Shalom. शालोम। Welcome to this devotion in the name of Jesus. इस डिवोशनल में आपका स्वागत है मसीह यीशु के नाम से। We all are aware that we are in a series हम सभी वाकिफ है कि हम सीरीज में हैं which is titled as Prayer of Jabez. जिसका शीर्षक है याबेस की प्रार्थना। We already seen 5 parts to it. हम इसके 5 भागों को देख चुके हैं। And today, this morning, we're going to look at the concluding part. हम आखिर के भाग को इस सवेरे के वक्त देखने I वाले want हैं। us to look at what are the things that we learned in these past days. और हमने क्या सीखा उन बातों को हम देखेंगे। In part 1, which we saw the prerequisite for an answered prayer. पहले तो हमने देखा कि कैसे अगर हम चाहते हैं कि हमारी प्रार्थना को कबूल की जाए तो किस चीज की जरूरत है। Second part that we saw how we need to break through the limitations by putting our faith in the living one of Israel. दूसरे भाग में हमने देखा कि कैसे इजराइल के जीवित परमेश्वर पर विश्वास रखते हुए हम जो है अपने सीमित जीवन से निकल सकते हैं। Thirdly, we saw how Jabez understood what true blessings were. और तीसरी बात हमने देखा कि कैसे याबेस जो है वो समझा सही मायने में सचमुच आशीष क्या है। Fourthly, we saw how he made a prayer and said कि extend enlarge my territory. और चौथी बात हमने देखा कि कैसे याबेस ने प्रार्थना की तू मेरे उस जमीन को या जगह को क्षेत्र को तू चौड़ा कर। When he said that he was not looking to acquire more land, जब याबेस ने ऐसे कहा तो वो ये नहीं चाहता था कि ज्यादा जमीन उसके नाम पर but हो जाए, asking for sphere of increase to sphere of influence, लेकिन वो चाहता था कि परमेश्वर उसके प्रभाव के क्षेत्र को चौड़ा करे so that he may influence people for God. ताकि वो जो है लोगों को प्रभावित करे यहोवा के लिए। And fifthly, that is yesterday, we saw something very, very important. और कल हमने कुछ महत्वपूर्ण देखा। Jabez prayed and said, let your hand be upon me. याबेस ने प्रार्थना की और ये मांग की कि परमेश्वर तेरा हाथ मुझ पर बना रहे। To sustain success, अगर हम चाहते हैं कि सफल पूर्वक हम बने रहे, to sustain influence over others, दूसरों पर प्रभावशाली हम बने रहे, you need the anointing of God. परमेश्वर के अभिषेक की जरूरत You है, need the presence of God, परमेश्वर की उपस्थिति की which जरूरत brings है, the anointing of God and brings the mantle of God upon our lives. जिसकी वजह से जो है परमेश्वर की उपस्थिति जो है परमेश्वर के अभिषेक को हमारे जीवन में लाता है और जो उद्देश्यवश हमको परमेश्वर ने बनाया है वो उद्देश्य जाकर पूरा हो जाता है, So that we may go out and accomplish all that God ever expects us. ताकि हम जाकर उन बातों को कर पाए जो परमेश्वर हमसे अपेक्षा करते हैं। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी this बहनों, morning we are come to the concluding part, इस सवेरे के वक्त हम आखिर के भाग को देखने and I वाले want हैं us to look at the 4th point of his prayer, और याबेस की प्रार्थना के चौथे भाग को हम देखते which हैं is extremely जो important. बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। I want us to open our Bibles to 1 Chronicles chapter 4 verse 10. हम अपने पवित्र शास्त्र में देखेंगे पहले इतिहास की किताब 4था अध्याय 10वां We वाक्य। can see this particular thing in that verse. उस वाक्य में हम देखेंगे It says that you would keep me from evil, that I may not cause pain. और तू मुझे बुराई से ऐसे बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित न होता। Number 1, here Jabez is asking for protection from God. पहली बात देख लीजिएगा कि याबेस जो है चाहता है कि परमेश्वर उसको अपना सुरक्षा प्रदान करे। Why he need the protection of God? क्यों याबेस परमेश्वर की सुरक्षा को चाहता है? Secondly, he goes further and says, so that I may not cause pain. ताकि मैं जो है
पीड़ा न दूं या पीड़ित न हो जाऊं। What is the meaning of the word name Jabez? याबेस ये नाम का मतलब क्या है? The meaning of Jabez is pain. याबेस का मतलब ही दर्द है या पीड़ा है। And this man understood the power of pain. और ये याबेस जो है समझता था भली बाती की पीड़ा क्या He है। did not want to give any pain to वो anyone. किसी को कोई पीड़ा नहीं देना And चाहता he था। had the potential of giving pain to three people. और उसमें वो क्षमता थी कि वो 3 लोगों को पीड़ा दे Or सकता rather था। 3 set of places that he could cause pain. और 3 जगहों में जो है वो पीड़ा दे सकता था। Number 1, he could cause pain to God himself. परमेश्वर को वो पीड़ा दे सकता था। Why? Whenever that he would commit a certain sin, a certain evil thing, that would make God's heart to be pained. और क्यों? क्योंकि यदि वो कोई दुष्ट काम करता परमेश्वर की नजर में, यदि वो पाप करता, सो उससे जो है परमेश्वर दुखी हो जाते। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी बहनों, many of us do not want to commit a certain thing, हम में से बहुत लोग जो है कुछ गलत करना नहीं चाहते but हैं, still we end up doing things लेकिन फिर भी हम गलती का करते हैं। which we know would break the heart of God, हम जानते हैं कि ये अगर हम करते हैं तो परमेश्वर खेदित हो जाएंगे, but still we go out and do it. फिर भी हम जाके उन बातों को करते हैं। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी बहनों, that is where Jabez needed protection. और वहां पे याबेस चाहता था कि परमेश्वर उसको सुरक्षित He रखे। understood the power of pain. वो जानता था पीड़ा में क्या बात है। He did not want to cause the heart of God to be pained वो- for his sake. वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से परमेश्वर का हृदय जो है वो पीड़ित हो जाए। He was saying that, Lord, give me protection that I may not cause evil, I may not commit evil against you. वो ये कह रहा था कि परमेश्वर तू मुझे सुरक्षित रख ताकि मैं जो है तेरे विरुद्ध में कोई पाप न करूं, कोई दुष्ट काम न करूं। Secondly, that he was praying for protection, और दूसरी बात, क्यों वो सुरक्षा के लिए मांग रहा था? that he may not cause pain to himself. कि वो जो है अपने खुद के लिए एक पीड़ा न बने। Listen to this carefully. ध्यान से सुन लीजिएगा। Many of us may ask this question, Pastor, how can we cause pain to ourselves? हम में से बहुत लोग ये प्रश्न पूछ सकते हैं, पासवान, हम अपने लिए पीड़ा कैसे बन सकते हैं? Any time that we go out and commit a certain sin, देखिए, जब कभी भी हम जाकर पाप करते हैं, we are sowing a seed, हम बीज को बो रहे हैं, and that seed has the potential to grow up to bring a harvest of wrongs for us. और देखिए उस बीज में, कुटिल बीज में वो क्षमता होती है कि हमारे लिए जो है गलत को ले आए। It's quite possible that sin that you're sowing may come in the form of a pleasure. और देखिए ये जो पाप के बीज को आप बो रहे हैं, हो सकता है ये आपको सुख विलास के रूप में आए। That pleasure, what looks to be pleasure today, has the potential to give us lot of pain in the days to come. जो आज जो है ऐसे लगता है कि हमको जो है इससे अच्छा लगेगा और हम पाप कर बैठते हैं, आगे जलकर जो है ये पीड़ा हो जाता है। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी बहनों, Jabez understood याबेस इस बात को समझा। evil always bring pain. और देखिए दुष्टता हमेशा पीड़ा को लाती है। That is why he was making that prayer. इसीलिए ये प्रार्थना को याबेस कर रहा He was था। saying, Lord, that I may not commit evil. वो कह रहा था कि परमेश्वर मुझे दुष्ट नहीं He करना, was saying, दुष्टता नहीं keep करना है। me from evil परमेश्वर मुझे दुष्टता से बचाए रख, so that I may be safe. I may not hurt, I may not bring pain to myself. ताकि मैं खुद जो है सुरक्षित क्षमा कीजिए रहूं, मैं अपने आप के लिए एक पीड़ा का कारण न बनूं। And thirdly, he was praying, और तीसरी बात वो ये प्रार्थना कर रहा Lord, था keep me from evil, कि परमेश्वर तू मुझे दुष्टता से बचाए रख, that I may not cause pain to others. ताकि मैं दूसरों को जो है पीड़ा न दूं। People who look up to me, लोग जो मेरी ओर देखते हैं, people who look up to me to be guided, to guide them. और लोग जो मेरी तरफ देखते हैं कि मुझसे उनको कोई मार्गदर्शन मिले, Lord, I may not pain them. कि परमेश्वर मैं उनको पीड़ा न दूं, I may not commit any evil against them. उनके विरुद्ध में मैं कुछ दुष्ट बातें या दुष्टता न करूं। Lord, परमेश्वर help me. परमेश्वर मेरी सहायता तू Keep कर, me from committing evil. और परमेश्वर मुझे दुष्टता करने से बचाए रख। My brothers and my मेरे sisters, भाइयों मेरी बहनों, anybody who understood this threefold thing, और जो कोई भी इस 3 बातों को समझता है, I'm telling you, this particular person understood the heart of God. याबेस जो है मानो परमेश्वर के हृदय को समझता था, He was in the will of God. परमेश्वर की इच्छा में वो था। God understood what kind of a heart that this man was making this prayer. परमेश्वर भली भांति समझते थे कि इसका हृदय
कैसा था और कैसे हृदय से ये प्रार्थना कर रहा है। That is why verse 10 concludes, and the Lord answered his prayer. और इसीलिए 10वें वाक्य में आखिर में लिखा हुआ है परमेश्वर ने जो उसने मांगा वो दे दिया। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी बहनों, if you want God to answer your prayers, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके मेरे प्रार्थना को कबूल करे, you better, I better, we better make this kind of mature prayers, जरूरी है कि हम प्रौढ़ प्रार्थना को करें which is in line with the will of जो God, परमेश्वर की सिद्ध इच्छा के अनुसार में है, so that we may please him, ताकि हम परमेश्वर को प्रसन्न करें, so that our time, our effort may not go in vain. ताकि हमारा प्रयास, हमारा परिश्रम जो है वो व्यर्थ न जाए। Many of us pray, spend a lot of time in prayer, हम में से बहुत लोग जो है बहुत समय प्रार्थना में बिताते हैं, but those prayers are still in the flesh. लेकिन वो प्रार्थना अब भी जो है शरीर में होता है, It is not in accordance to the will of वो God. परमेश्वर की सिद्ध इच्छा के अनुसार How नहीं है। can you expect God, who loves you, to answer a certain prayer that you make, which can cause you, put you into trouble tomorrow? और कैसे आप जो है ये अपेक्षा कर सकते हैं कि जो परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं ऐसी प्रार्थना को वो सुने जिसकी वजह से आगे चलकर आपको समस्या हो, तकलीफ हो। He doesn't want you to be in problem. वो नहीं चाहते हैं कि आप और मैं समस्या में हो, And that is तकलीफ में why हो। He never answers those और prayers. इसीलिए उन प्रार्थनाओं को जो शरीर में होता है उसका जवाब परमेश्वर नहीं When we देते don't hear any answer from God, हैं। जब हम परमेश्वर से कोई जवाब नहीं पाते हैं, we think that God is not listening to us, हम सोचते हैं कि परमेश्वर सुन नहीं रहे हैं, but actually that you are not listening to God. लेकिन सही मायने में अगर देखा जाए तो आप परमेश्वर को सुन नहीं रहे हैं। Ponder on these things. इन बातों पर थोड़ा मनन Even कीजिएगा। as you are entering into the और weekend, जैसे आप वीकेंड में प्रवेश कर रहे I हैं, want you to spend some solid time in the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में आप कुछ ठोस समय को In बिताइएगा, fact, an extended time in the presence of थोड़ा God, और जो है परमेश्वर की उपस्थिति में समय को to बिताइएगा। meditate on the prayer of Jabez, याबेस की प्रार्थना पर और मनन कीजिएगा so that and align your prayers to the will of God, और अपनी प्रार्थना को परमेश्वर की सिद्ध इच्छा के अनुसार में so कीजिएगा, that you may get an answer for every prayer that you make. ताकि आपकी प्रार्थना को कबूल की जाए In the name of Jesus यीशु Christ. मसीह के नाम से। With these thoughts, इन विचारों के साथ go into the weekend. हफ्ते में जाइएगा, And may the Lord answer every prayer of you in the name of Jesus क्षमा Christ. कीजिएगा, वीकेंड में जाइएगा, परमेश्वर आपकी सारी प्रार्थना को जवाब दे यीशु मसीह के नाम से। God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित You have an रखे, awesome weekend. आपका वीकेंड बड़ा अद्भुत जाए।